کل کی بات ایک بار پھر ایم کیو ایم کے مرکز پر تالا لگانے کے لیے کون آیا؟ کون یہ کہہ کر آیا کہ اب یہ دفتر بند ہو جائے گا؟ سیل لگانے کا اعلان کس نے کیا؟ آخر ایم کیو ایم کے کارکن زخمی ہوئے، فائرنگ ہوئی، سب کچھ ہوا، ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوئی؟ آپ نے سوچا ہے؟ خبر دینے والا ہوں۔ مصطفیٰ کمال نے کہہ دیا رات گئی بات گئی، لیکن ایم کیو ایم پاکستان نہیں مانی۔ کل کی بات اس کا انتظار کر 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 کے سب لوگ چلے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے دھمکی دے دی ہے، وفاقی حکومت جانے والی ہے۔ کیا حقیقت کچھ ایسی ہی ہے؟ آپ کی اڑتی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ آفاق احمد سے ٹکرانے کا فیصلہ کس نے کیا ہے اور بڑے حالات کشیدہ کون کر رہا ہے؟ ایک اہم خبر دینے والا ہوں۔ سنسنی خیز خبر یہ دینے والا ہوں کہ ایم کیو ایم کا ایک گروپ جس کا نام مصطفیٰ کمال اور علی سیم خانی کا گروپ ہے، بہادر آباد پہنچتا ہے اور کسی کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ آخر وہ کون ہے کہ جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ کیوں نہیں پہنچے ہیں؟ یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایم کیو ایم پاکستان کے دفتر کو سیل کرنے کے لیے ایک ایس ایچ او اور ایک پولیس کی موبائل صرف آتی ہے۔ یہ پیغام دینے کے لیے آئے تھے یا پھر کچھ اور بتانے کے لیے آئے تھے؟ یہ ایک بڑی اہم خبر دینے والا ہوں آپ کو، سنیے گا، دیکھیے گا۔ لیکن ان سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح شرط یہ عائد کرتا ہوں کہ ڈریے گا نہیں، جھسکیے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ صرف کراچی شہر ہی نہیں بلکہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو دو باتیں ڈسکشن میں آ رہی ہے وہ دو باتیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ سب سے پہلا اہم واقعہ ہے ایم کیو ایم پاکستان کے آپس کا ٹکراؤ، اور دوسری اہم بات ہے صوبوں کی تشکیل۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں بہت زیادہ لنک کرتی ہے۔ اس وقت اگر صوبے کی آواز کہیں پر سب سے زیادہ بلند کی گئی تو وہ کراچی کے حوالے سے تھی، اور کراچی کی نمائندگی کرنے والی اور ایک عرصے تک کراچی پر راج کرنے والی ایم کیو ایم آج آپس میں ایک ٹکراؤ کی کیفیت میں موجود ہے۔ گزشتہ رات کو جو ٹکراؤ ہوا، اس ٹکراؤ کے بعد پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی جانب سے یہ بیان آیا تھا کہ اس واقعے کی ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ لیکن سوچئے کہ آخر اس واقعے کی ایف آئی آر کیوں درج نہیں کی گئی؟ کہانی ذرا سی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے دونوں گروپوں میں تصادم ہوا، تصادم کے بعد فائرنگ کا سلسلہ ہوا، فائرنگ کے بعد دونوں گروپ علیحدہ علیحدہ ہو گئے، ایم کیو ایم کے مرکز کو تالا لگ گیا، وہاں سے تمام چیزیں لے جائی گئی، ایم کیو ایم کے دفتر کو تالا ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں نے لگایا تھا۔ اور اب کہانی چلتے ہی آگے، رات گئے تک کم سے کم صبح 4 بجے تک مختلف جگہوں پر میٹنگز ہوتی رہی، لیکن ان میٹنگز کا کوئی بھی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا، جس کے بعد آج دوپہر کے وقت یعنی کہ صبح کے وقت کوئی 12-1 بجے کے قریب پھر مشترکہ دوستوں کے یہاں پر کچھ میٹنگز کا انعقاد کیا گیا، اور اس میٹنگز میں یہ بات طے کی گئی کہ جناب اس معاملے کو حل کیا جائے۔ اس حل کرنے کے لیے یہ طے پایا کہ جن جن لوگوں نے فائرنگ کی ہے یا جنہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت پر حملہ کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس حوالے سے یہ اطلاع آنا شروع ہوئی کہ وہ لوگ جو کہ کچھ عرصے پہلے رہا ہوئے تھے، جس میں سے ایک شخص جس کا نام
रहमान भोला करार दिया जाता है, जो कि बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस में इन्वॉल्व था, उसके यहाँ पर भी छापा पड़ता है और उसे गिरफ्तार करने की एक सीसीटीवी फुटेज भी मिलती है। लेकिन अभी तक किसी की जानिब से ये क्लेम नहीं किया गया कि उनकी गिरफ्तारी किस वजह से की गई है और फिर क्या कहा गया है। मगर मामला ये था कि एमकेएम पाकिस्तान इस बारे में बजिद नजर आ रही थी और खास तौर पर उनकी क़यादत कि जनाब एफआईआर जरूर दर्ज की जाए और इस मामला को हल किया जाए। मुश्तरका दोस्तों के यहाँ कुछ मामला तय पाते हैं और उसके बाद ये बात आती है कि कोई करीबन 6 बजे के करीब ये इत्तलात आती है कि एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत, दोनों क़यादत है यानी कि मुस्तफा कमाल वाला ग्रुप भी और खालिद मकबूल वाला ग्रुप भी वहां पर पहुंच रहा है। ये इत्तलात आना शुरू होती है कि दोनों एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सबसे पहले इन दोनों के आने से पहले हैरतअंगेज तौर पर मीडिया में इनके आने से कोई 20 मिनट पहले मीडिया में ये खबर चलना शुरू होती है कि वहां पर पुलिस मोबाइल आ गई है। हम भी ये देखने के लिए वहां पर जाते हैं कि पुलिस मोबाइल आ गई है और उस वक्त सिर्फ एमकेएम का एक रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है शब्बीर कायम खानी वहां पहुंचते हैं। शब्बीर कायम खानी वहां पर पहुंचकर पुलिस वालों से गुफ्तगू करते हैं, उनको चाय पिलाते हैं और उन्हें रुखसत कर देते हैं। जिसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि ये आए थे और ये कह रहे थे कि हमें यहाँ पर एमकेएम के दफ्तर को ताला लगाना है। तो अब सवाल ये बनता है कि उन्होंने पूछा कि जनाब आप कोई मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लाएं कि अगर आपको सील वील करना है तो एक बात बहुत वाज़ेह तौर पर थी, ये जो लोग भी आए थे ये एमकेएम के दफ्तर को सील करने नहीं आए थे, बल्कि लगता यूं है कि एमकेएम पाकिस्तान की दोनों क़यादतों को एक पैगाम देने के लिए आए थे कि जनाबे वाला सुधर जाइए वरना ये ताला लग जाएगा। वरना इतनी बगैर तैयारी के आना, ना ही उनके पास इस तरह की नफरी, ना ही दीगर जो लोग, ना ही कानूनी तरीकेकार, ना ही मजिस्ट्रेट की मौजूदगी, कुछ भी नहीं था। बहरहाल ये पैगाम वाज़ेह तौर पर एमकेएम पाकिस्तान को दे दिया जाता है। अब कहानी में आता है एक नया टर्न और कहानी में एक नया टर्न यह आता है कि इस वक्त शब्बीर कायम खानी साहब से या कुछ लोगों से वहां गुफ्तगू होती है। वो कहते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं और उनके साथ साथ यहाँ पर दीगर क़यादत भी आ रही है। उनका कहना यह था कि वहां पर मौजूद एक रहनुमा का कहना यह था कि कुछ बड़ों के यहाँ पर बैठकर मामला तय हो गए और आज शाम तक तमाम मामला तय हो जाएंगे। अब ये मामला चल ही रहा होता है कि इतनी देर में मुस्तफा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब एक साथ वहां पर पहुंचते हैं। कैमरों का रुख एक बार फिर मुस्तफा कमाल की तरफ हो जाता है और मुस्तफा कमाल से पूछा जाता है कि जनाब क्या कहेंगे, क्या मामला है। वो कहते हैं बस सब कुछ सही है और सब कुछ अच्छा है। जिसके बाद मुस्तफा कमाल साहब और अनीस कायमानी साहब वहां जाकर अंदर बैठ जाते हैं। अब सारे मीडिया को ये बात मालूम होती है कि शब्बीर कायम खानी वहां पर अंदर मौजूद है और सब ये बात जानते हैं कि एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत भी यहाँ पर आने वाली है। बाहर मीडिया तमाम का तमाम इंतजार कर रहा होता है कि एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत भी आने वाली है। करीबन कोई 8:30 बजे तक सबका इंतजार किया जाता है और 8:30 बजे ये एक पैगाम कहीं से मौसूल होता है कि एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत नहीं आ रही है। ये बात सारे मीडिया को बात मालूम होती है कि जनाब कोई ना कोई मुश्तरका शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसकी वजह से दोनों तरफ से इनकी आमद की इतलात दी गई थी। अब मामला ये होता है कि वहां पर बार बार आकर मीडिया के नुमाइंदों से जो पीएसपी की क़यादत है वो आकर मिल रही होती है, पैगाम आप दिए जा रहे होते हैं कि जल्द से सारे मामला हल हो जाएंगे। अंदर एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत मौजूद नहीं होती बल्कि सिर्फ और सिर्फ पीएसपी की क़यादत मौजूद होती है कि जो वहां पर आपस में मुशावरत करती है। मुस्तफा कमाल साहब एक सबको अपना लाहे अमल बता रहे होते हैं कि हमें क्या करना है और किस तरीके से करना है। ये जो कुछ अंदर बात हुई है फिर कभी मैं डिस्कस करूंगा, अभी मेरा मौजू ये नहीं है। लेकिन एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत नहीं आती। कोई 8:30 बजे जब ये लोग इन्हें अंदाजा हो जाता है कि अब भी एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत नहीं आ रही है तो उसके बाद ये बाहर निकलते हैं। मीडिया पहले से इनका इंतजार कर रहा होता है और मीडिया इनसे ये पूछता है मुस्तफा कमाल साहब से कि जनाब क्या हुआ है। मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक हो और फिर वो कहते हैं कल जो वाक़यात हुए थे वो कहते हैं कल की बात कल पर जाने दें, छोड़ दें। उसके बाद वो सहाफ़ी फिर पूछते हैं कि जनाब क्या मामला हुआ है तो वो इनकार कर देते हैं कि जनाब इस पर हम सब मामला आपको जल्द अच्छी खबर मिलेगी। दूसरी तरफ शब्बीर कायम खानी जो कि वहां पर पहले मौजूद थे वो के थोड़ी देर के बाद वहां से चले गए थे। उसके बाद शब्बीर कायम खानी साहब की एमकेएम की क़यादत कहां पर मौजूद थी उनका राब्ता किसी के साथ भी नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं पहुंचे और खास तौर पर जबकि सबके इल्म में था कि एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत यहाँ पर पहुंचेगी, यानी कि फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर उनके साथ जो उनके सारे ग्रुप के लोग हैं तमाम के तमाम वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन नहीं पहुंचे। अब हमारे पास इतलात क्या है? हमारे पास इतलात यह है कि इस सारी सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है और खास तौर पर जो फायरिंग का वाकया रोनुमा हुआ है उसे काबिल कबूल नहीं समझा जा रहा। इस फुटेजेस की मदद से उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए भी बातचीत की
की जा रही है कि जनाब जो जो लोग इस फायरिंग के वाकयात में मुलविस थे। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आखिर इन्हें किस मुकदमे की बुनियाद पर रखा जाएगा। मुकदमा किसी न किसी की मुद्दत में दर्ज होगा और अभी तक एमक्यूएम पाकिस्तान या पीएसपी की क़यादत कोई भी मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। दोनों तरफ का दावा यह है कि हमारे कारकुनान को मारा गया। अगर हमारे कारकुनान को मारा गया तो यकीनी तौर पर एक पुलिस एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कानून का तकाजा होता है कि उसे जरूर बिल जरूर रखा जाए। लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। अब एफआईआर दर्ज ना करवाने का क्या मामला है? क्या एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत में दो हिस्से हैं और दोनों हिस्सों में से एक हिस्सा इस बात का इस्रार कर रहा है कि ये एफआईआर दर्ज की जाए, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ से अब तक इस हवाले से गो हेड नजर नहीं आ रहा है कि जनाब एफआईआर को दर्ज किया जाए। अब सूरत हाल यहाँ पर गंभीर से गंभीर है। जो आज कल रात से अब तक जो मसालियत की कोशिशें हो रही थी, जो दोनों ग्रुप के दरमियान कंप्रोमाइज की कोशिश हो रही थी, वो अब तकरीबन इस मरहले तक रात के वक्त, शाम के यानी कि तकरीबन 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ये तवक्को की जा रही थी कि दोनों ग्रुप एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, लेकिन वो नहीं हो सकी है। अब इस सिलसिले की एक और कड़ी भी और गिरफ्तारियों का सिलसिला कहां पर जाकर आकर रुक रहा है, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। मगर इस सारी सूरत हाल में शहर के अंदर एक और कशीदगी का वाकया भी रोनुमा हुआ है, बल्कि दो कशीदगी के वाकयात रोनुमा हुए। पहला वाकया हुआ है तहरीक इंसाफ ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गुज़िश्ता रात को अपनी रैलियां निकाली है। 5 अगस्त से अलीमा खान साहिबा ने ऐलान किया है कि वो हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमती तहरीक करेगी और कल मुख्तलिफ फुटेजेस के अंदर ये देखा जा सकता है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रैलियां निकली हैं, यानी कि तहरीक इंसाफ की रैलियां निकली हैं। क्या तहरीक इंसाफ को इजाज़त दी जा रही है? ये एक बड़ा अहम सवाल है और ख़ास तौर पर आप ये देखिए कि वफाकी हुकूमत के मुतालिक एक बार हमारे यहाँ पर हमेशा हुकूमतों का वक्त 2.5 साल से 3 साल रहता है। एक बार फिर मौजूदा वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजियां शुरू हो गई हैं और आपको याद होगा कि जिस वक्त खासतौर पर इमरान खान की पिच कमजोर हुई थी और इमरान खान की उस वक्त की मुक़तदरा कुव्वतों के साथ ताल्लुकात खराब हुए थे, तो ऐन उसी वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तकरीरें करना शुरू कर दी थी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उसके बाद एक सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च किया था, जिसके बाद तहरीक आदम इत्तेफाक तेज हुई थी। अब एक बार फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी धमकियां दे रहे हैं कि अब वो वफाक की तरफ मार्च करेंगे या वो वफाक की तरफ आगे बढ़ेंगे और वफाक को अब ढील नहीं देंगे। तो क्या एक बार फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी वफाकी हुकूमत को गिराने के तौर पर जा रहे हैं? मैं ये आपसे इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर बैठकर ये ऑप्शन दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को इस सारी सूरत हाल में एक रियायत दी जा सकती है और तहरीक इंसाफ को आगे लाया जा सकता है और तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिलकर एक हुकूमत तश्कील दी जा सकती है या कम अज कम मौजूदा हुकूमत को या मौजूदा सेटअप को गिराया जा सकता है। अब ये अफवाहें कह लीजिए, सोशल मीडिया की बातें कह लीजिए या दीगर बातें कह लीजिए, वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है ये कड़ी आपको आगे चलकर समझ में आएगी। लेकिन जो बात मैं पहले कह रहा था आपसे कि शहर में शदीद एक तसादुमी कैफियत मौजूद है। इस तसादुमी कैफियत में हुआ यह है कि आफाक अहमद साहब ने अभी पिछले दिनों लांडी के अंदर जलसा किया था, यानी पिछले इतवार को उन्होंने जलसा किया था। और जलसे के बाद हुआ यह था कि बुध, जुमेरात और जुमे के दिन, यानी कि बुध, जुमेरात और जुमे के दिन आफाक अहमद के कारकुनान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आफाक अहमद की हिमायत में और जनूबी सिंध सूबा के लिए मुख्तलिफ जगहों पर चौकिंग की थी। आफाक अहमद साहब ने मुसलसल वहां पर कई जगहों पर चौकिंग की थी, यहाँ तक के डिस्ट्रिक्ट साउथ, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट और गडाफ के तमाम कई इलाकों के अंदर ये चौकिंग हुई थी। मगर एक बड़ा ही अजीब वाकया हुआ ये कि इनकी आफाक अहमद साहब की चौकिंग को मुख्तलिफ जगहों पर मिटाया जाने लगा है। ये जो मिटाया जाने लगा है ये टिपिकल जहां पर कोई सिंधी कॉम्प्रेस इलाके या दीगर इलाके नहीं, बल्कि खुद जो महाजिर अक्सरियती इलाके हैं वहां पर कई जगहों पर आफाक अहमद साहब की चौकिंग को मिटाया गया, जिसके बाद आफाक अहमद साहब के कारकुनान और कई एक सियासी जमात के कारकुनान के दरमियान कशीदगी भी देखी गई। ये देखा जा रहा है कि आफाक अहमद साहब ने 13 तारीख को लियाकताबाद में अपने इवेंट का ऐलान किया हुआ है, यानी कि जश्न आज़ादी की तकरीबात का ऐलान किया हुआ है और दूसरी तरफ उनके कारकुनान मुख्तलिफ जगहों पर चौकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और उस चौकिंग को बहुत सारी जगहों पर मिटाया जा रहा है। अब कौन लोग मिटा रहे हैं? वो महाजिर कौमी मूवमेंट के लोग के दरमियान और उनके दरमियान एक तनाव की कैफियत मौजूद है। एक तरफ एमक्यूएम के आपसी इख्तलाफ मौजूद है, दूसरी तरफ महाजिर कौमी मूवमेंट और
आप समझ सकते हैं किसके दरमियान इख्तलाफात है। तो उनके दरमियान जो है वो ताल्लुकात इस वक्त कशीदा पाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर चौकिंग मिटाने का सिलसिला इनका जारी है। अब ये भी तनाव जो है वो आगे चलकर क्या शक्ल इख्तियार करता है, ये बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगा। अब आइए अगले मरहले की तरफ और अगले खबर की तरफ। अब यहीं से बात को कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पर जो सूबे की बात कही जा रही है और यहाँ पर जो मुख्तलिफ एमकिन के धड़ों के दरमियान इख्तलाफात की खबरें, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वफाक के खिलाफ अपना मोर्चा बना रही है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई वुज़रा ने खास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूबों की तश्कील की जहाँ मुखालफत की है, वहां पर कश्मीर में होने वाले इलेक्शन के भी हवाले से गुफ्तगू की है। तो एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर टफ टाइम आ रहा है, क्यों आसिफ अली जरदारी गुज़िश्ता 22-23 दिनों से इस्लामाबाद नहीं जा रहे, वहां पर बहुत सारी नई हलचल मच रही है, लेकिन वो कराची के अंदर ही मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीर की मुहिम को चला रहे, 10 तारीख तक कश्मीर के इलेक्शन है और उसके बाद जाहिर है वहां का नतीजा फाइनल हुकूमत का होगा। अब तक की जो ओपिनियन देखा जा रहा है उसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक अक्सरियती वोट ले चुकी है और मुमकिन तौर पर उनकी वहां पर अब वजारत भी बन जाएगी, यानी कि वजारत आला भी या वजीर आजम कश्मीर जो कहा जाता है वो भी उनको वहां पर मिल जाएगी। मगर सूरत हाल की गंभीरी है कि आखिर हो क्या रहा है इस वक्त। बिल्कुल वफाक और सूबों और सियासी जमातों के दरमियान जो रस्सा कशी का मंजर है वो वाज़ेह तौर पर देखा सकता है। क्या एक बार फिर जो पिछले गद्दार थे वो मुहिब्बे वतन होने वाले हैं और जो मुहिब्बे वतन थे वो क्या फिर गद्दारों के लिस्ट में आने वाले हैं? नज़ारा देखते जाइए, अगले 6 महीने के अंदर सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। और याद रखिएगा कि जब मैं कहता हूं तो वो हो रहा होता है, और जब मैंने पिछली बार इमरान खान के मुतालिक भी जब कहा था तो वो हुआ था। अब भी मैं जो कह रहा हूं आपको, तो अब चीजें तेजी के साथ तब्दील होगी। इनकी सियासत में ये महीने का आखिर बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगा। आप देखिएगा कि क्या होता है, और इस मुल्क की सियासत के लिए अगले 6 महीने ज्यादा तेजी के साथ आप देखिएगा कि होगा क्या। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दीजिएगा। अल्लाह के बाद।